We thank God for this blessed time that He has given to us to praise Him, to worship Him, and to give Him thanks. हमारे खुदा ने हमारे खुदा की इबादत करने के लिए, हमदो सिताइश बजाने के लिए और शुक्रिया अदा करने के लिए जो वक्त उसने हमें बख्शा है, उसको लेकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं। This is a blessed time that God waits. ये बहुत मुबारक वक्त है जिसके लिए खुदा भी मुंतजिर है। When God waits for His children to praise Him and to worship Him. खुदा इस बात का मुंतजिर है कि उसके बच्चे आएं और उसकी इबादत और हमदो सिताइश बजा लाएं। Before we meditate small portion of the scriptures, खुदा के कलाम में से चंद कलाम पर मुताला करने से पहले let's look to the Lord for His help. खुदा की मदद के लिए हम दुआ मांगेंगे। Our loving living hell Father, You are a God of grace, mercy and peace. You are a God of compassion. You are a God of all comfort. At this time we have come here to worship You, to exalt You and to praise You and to worship You, dear for Lord. Even as we seek to worship You, help us so that we can praise You and worship You with a very clean heart, Lord, because Thou desirest not our offerings but our praises. Lord, we commit ourselves, Lord, and remember this humble servant also, servants, even as we deliver the word from Your heavenly throne. Help us so that we can communicate in a way that is palatable to everyone, Lord. Everyone may understand and praise You with thanksgiving and to exalt You in this worship service. We commit ourselves and pray with thanksgiving in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Worship is I think it's the most difficult part for a Christian. इबादत जो है वो एक यीशुई मोमिन के लिए बहुत अहम बात होती है। It's the most misunderstood concept. बहुत सारी बार इबादत के बारे में लोग सही तरीके से जान नहीं पाते हैं। And remember, it's the only thing that is common on the face of the earth and in heaven. और हमारी जिंदगियों में जमीन पर, यहाँ पे और आसमान में जाने के बाद भी ये इबादत एक ही वाहिद चीज है जो बदलती नहीं है। And God has given us guidelines how to worship Him. और खुदा ने अपने कलाम में हमें बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हैं जिनके मुताबिक हम उसकी इबादत कर सकते हैं। One of the most important definitions of worship is, इबादत का एक बहुत अच्छी तारीफ ये है, or what the scripture says is, या खुदा का कलाम इबादत के बारे में यूं फरमाता है, worship is remembering God. इबादत का मतलब होता है खुदा को याद फरमाना। And worship is remembering God and remembering His works. खुदा को और उसके अमाल को, हमारी जिंदगी में उसके अमाल को, फेल को याद करना इबादत होती है। So we'll take up one verse from Psalm 78 and use this key verse to develop thoughts how to worship Him. हम मज़ामिर की किताब चैप्टर 78 देखेंगे और इसमें से हमारी इबादत हम पेश लाएंगे। But they deceived, verse 36, but they deceived Him with their mouth and lied to Him with their tongue. आयत नंबर 36, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से उसकी खुशामद की और अपनी जबान से उससे झूठ बोला। A worship that comes from the lips and not from the heart is abhorred by God. ये जो इबादत मुंह से, होंठों से आती है बल्कि दिल से नहीं, वो खुदा के सामने बहुत हकीर जानी जाती है। Even as our Lord is quoting from Isaiah and says, in vain do they worship me. और खुदावन हमारे खुदा यशायाह की नबी की किताब से भी उठाकर बात करते हुए कहते हैं कि ये लोग बेफायदा मेरी इबादत करते हैं। When we come here to worship, God desires a single heart devoted to Him. जब हम यहाँ पे आते हैं खुदा की इबादत करने के लिए, तो खुदा हमारे दिल को अपने ऊपर ही रखना चाहता है। A single mind devotion. सिर्फ और सिर्फ खुदा पर ही तवज्जो फरमा के इबादत करना चाहिए। That's why in Psalms 12 and verse 2, इसीलिए मज़ामिर की किताब आयत नंबर 12 और बाब नंबर 12 और आयत नंबर 2 में लिखा हुआ है, it reads like this. 12 की 2 में ऐसा लिखा हुआ है, They speak vanity, everyone with his neighbor, with flattering lips and a double heart do they speak. वो अपने अपने हमसाये से झूठ बोलते हैं, वो खुशामदी लबों से दोरंगी बातें कहते हैं। Behind every flattery there is a double heart. देखें, हर खुशामदी के पीछे एक डबल हार्ट रहता है। One thing we say and there is another thing in our heart. मतलब दोरंगी बातें कहने वाला दिल होता है, मतलब अंदर एक बात होती है, बाहर एक बात कह देते हैं। In simple words, it is lying.
आसान अल्फाज में अगर कहना है तो ऐसा बोलना, ऐसा जीना झूठ का बराबर होता है। Now, this Psalm 78 has been penned by Asaph. यहाँ अगर हम देखें तो साम 78 को अगर हम देखते हैं तो इसे आसाफ ने लिखा था। This psalmist is recalling the history of God's people, the Israelites. इस मजमूर में इस्राएली लोगों का मतलब खुदा के लोगों की हिस्ट्री जो है, तारीख जो है, उसके बारे में जिक्र है। Not only is recalling history, he is recalling also God's grace upon his people. और यहाँ पे इस्राएलियों का हिस्ट्री जो है, तारीख जो है, इसका ही दर्ज नहीं है, बल्कि खुदा की रहमतें जो हैं उनके बारे में भी लिखा हुआ है। This is not only the story of the Israelites, but it's our story as well. ये सिर्फ इस्राएलियों की ही कहानी नहीं बल्कि हमारी भी होती है। As Asaph reviewed the history of the people, जैसे आसाफ ने इस्राएलियों की तारीख जो है उसके बारे में यहाँ लिखा, he saw a sad and bad record. और वो लिखता है कि जब उसने उनकी जिंदगियां देखी तो बहुत बुरी लगी थी उनको। Number one, forgetfulness of his people. पहली बात ये उनको दिखने लगी है कि खुदा के लोग भूल चुक बजा लाते हैं, भूल जाते रहते हैं। They have no memory at all. उनके जहन से मेमोरी जो है वो चली जाती है। And number two that Asaph is pointing out, these people are faithless. और दूसरी बात जो आसाफ इनके बारे में, इन लोगों के बारे में बताता है, वो बात यह है कि ये लोग बेईमानी दिखाते हैं। They have failed to trust in God. बार बार खुदा पर यकीन रखने की बात में वो लोग गिर जाते हैं। So number one, forgetful. Second one is faithless. तो पहली बात यह है कि भूल जाते रहते हैं, दूसरी बात यह है कि वफादारी नहीं दिखाते हैं, And third one is foolishness. और तीसरी बात यह है कि अहमक बनते हैं, Making very rash decisions, not knowing the will of God. खुदा की मर्जी को पहचानने के बदले में ये लोग बहुत रैश डिसीजंस मतलब वक्ती इंतखाब करते रहते हैं। They rebelled against God. वो लोग खुदा की निस्बत सरकशी दिखाते हैं। And the fourth one is failure. और चौथी बात यह है कि लोग गिर जाते रहते हैं, No discipline. इनकी जिंदगियों में नज़्म ज़ब्त नहीं होता। So forgetfulness. तो पहली बात यह है कि भूल जाते They हैं are faithless people. और बेवफाई दिखाते हैं Acting foolishly. और अहमक बनते हैं, And failure on all fronts. और हर बात में, हर चीज में बार बार वो लोग गिरते रहते हैं, गिर जाते हैं। One thing we need to understand. लेकिन यहाँ पे एक बात को हमें समझना है, With these characteristics, we cannot worship Him in spirit and in अगर truth. हमारे अंदर भी इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिफत हैं, तो हम खुदा की इबादत कर नहीं सकते हैं। This psalm is a wake-up call for every believer. और इसलिए ये मजमूर जो है हर एक यीशु मोमिन को ये मजमूर जगाते रहता है। It's like ringing the alarm. अलार्म को रिंग करना, बजाने का बराबर है ये मजमूर। What does the psalm teaches us? तो इस मजमूर में से हमें क्या सीख मिलती है? Remember. याद रखना। For some good reasons, we have been frequently asked to remember. खुदा हमें बार बार ये कहता है कि हम याद करें, याद करें। इसके पीछे एक बहुत अच्छी वजह भी है। When we take part in the table, we are warned to remember. We have been called upon to remember the Lord's death. जब हम खुदा की इस मेज में हाथ डालते हैं तब भी हमें बताया जाता है कि हम खुदावंद यीशुआ के मसलूब व मकतूल होने की बात को याद करें। Secondly, remember Lot's wife. और दूसरी बात, लोत की बीवी जो है उसको याद करना। And in Revelation, remember the first love. और मुकाशिफा की किताब में लिखा हुआ है कि तेरी पहली सी मोहब्बत जो थी उसे याद करना। And again from Revelations, remember from where you have fallen. और मुकाशिफा की किताब में ये भी हमें बताया जाता है कि जहां से तू गिर पड़ा है उस पहले मुकाम को याद करना। And remember what you have received and what you have heard. और तूने जो कुछ खुदा से पाया है और जो कुछ तूने सुनी भी है उसके बारे में, ये सब कुछ तू याद रखना। Now this psalmist Asaph tells, remember God and His work. इसीलिए अब इस मज़ामीर नवीस मजमूर का लिखने वाला आसफ कहता है कि खुदा को याद करना। And this psalmist is telling the people to remember. Number one, they are from where they have been redeemed. और इसलिए ये मजमूर नवीस आसाफ यहाँ पे हमें बताता है और लोगों को भी ये सिखाता है कि उनको याद करने के लिए कहता है कि कहाँ से उन लोगों को खुदा ने छुड़ा के लाया था। Remember Egypt from where you have been redeemed. मिस्र को याद रखो, याद करो जहाँ से तुझे खुदा ने छुड़ाया था। Egypt is a picture of our lost condition and our bondage to this world. मिस्रइम जो है वो हमारी
पिछली जिंदगी है, मतलब हम जब गुनाह में गिरे हुए थे उस जिंदगी को वो याद करके दिखाता है। And then the psalmist says, remember your wilderness journey. और मज़ामिर नवीस ये भी कहता है कि इस बयाबान की जिंदगी जो थी उस बयाबानी जिंदगी को भी याद करना। And pointing to us, it says, remember your carnal life. और ये आयत हमसे क्या कहती है कि हमारी जिंदगी में भी जो जिस्मानी तरीके से जीने का वो ख्वाहिश रहती है उसे हमें याद करने के लिए बताता है। This wilderness journey was marked by unbelief. और ये बियाबानी जिंदगी जो इसराइलियों की तारीख में हम देखते हैं तो वो सरकशी को याद कराती है, Marked by disobedience, नाफरमानी याद करती है, unholy desires. और नापाक ख्वाहिशात को याद कराती है। A few days journey was turned into a 40 years ordeal. सिर्फ चंद दिनों में वो लोग मिस्र से कनान को जा सकते थे, लेकिन चंद दिनों की ये सफर जो थी सालों, तकरीबन 40 सालों की तवील सफर बन चुकी थी। This carnal life prevented them from enjoying the abundance in the promised land. ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उनकी जिंदगी में ये जिस्मानी ख्वाहिशात थीं जो उन्हें फौरन मऊदा मुल्क में जाने से रोकी थीं। So from Egypt they went to the wilderness, and from the wilderness thirdly they went into Canaan. इसीलिए वो लोग मिस्र से छूट करके निकल के मखलसी पाके बियाबान में आए और उसके बाद बियाबान में तवील अरसे के बाद वो लोग कनान पहुंचे। Canaan signifies our claiming of inheritance. कनान जो है हमारी आने वाली मिल्कियत जो हमें मिलती है उसको याद दिलाता है। Not only by faith, ईमान से ही नहीं, by putting that faith in action. बल्कि ईमान को अमाल में तब्दील करने से। We know in the land of Canaan they had to make wars. हम जानते हैं कि कनान मुल्क में जब वो लोग पहुंचे तो वहां पे बहुत सारे जंग लड़ने पड़े। They had to drive the enemies. और उन लोगों को, दुश्मनों को, मुखालिफों को उनके सामने से हराकर भगाना पड़ा। And capture the land that has been promised by God. उसके बाद खुदा ने जो मुल्क को वादा किया था उसे अपनाने लगे। There they enjoyed the rest given by the Lord and enjoyed His abundance. वहां पे खुदा ने जो आराम उनको दिया था, अमन और इत्मीनान उन्हें बख्शा था, वादा किया था, उस मुल्क में वो लोग पाने लगे। When we read this psalm, और जब हम इस मजमूर को पढ़ते हैं, the story of the people of Israel, इसराइलियों की ये कहानी या दास्तान जो है, do we not see our faces as clearly as in a mirror? क्या हम भी हमारी जिंदगियां इस कलाम के जरिए से एक आईने में जो हम हमारे चेहरे देखते हैं उस तरह क्या हमारी जिंदगियां इस कलाम में से हमें दिखती नहीं हैं? But when we recount our life, remember our life, it's only telling about God's mercy. लेकिन जब हम हमारी जिंदगियों को फिर से एक बार याद करते हैं, झांक कर गुजरी हुई जिंदगी को देखते हैं तो खुदा की रहमत ही बार बार हमें दिखाई देती है। One fact about the Israelites, इसराइलियों के बारे में एक हकीकत तो ये है, they alternated between faith and apostasy. क्योंकि वो बात ये है कि उन्होंने बार बार ईमान और बेईमान के बीच में जूझते रहे। But one thing was steadfast, one thing was constant. लेकिन एक बात तो बरकरार रही, हमेशा जायज रही। It's God's never ending mercy and His faithfulness. वो बात यह है कि खुदा की रहमत जो है वो कभी भी जवाल नहीं हुई, लाजवाल ठहरी। That's why we sing, great is thy faithfulness. इसीलिए हम कहते हैं, ए खुदावन आपकी वफादारी वो तो बेमिसाल है। Even in Psalm 118, हम पढ़ते हैं मज़ामिर की किताब चैप्टर 118 में, the first 4 verses पहली 4 आयतों में and the last verse, और आखिरी आयत में we find this phrase, His mercy is everlasting. ये जुमला हम पढ़ते हैं कि उसकी शफकत अबदी है। Even in Psalm 136, और साम 136 में भी there are 26 verses, वहां पे 26 आयतें हैं, and the second part of each verse says, for His faithfulness is everlasting. और उसमें हर एक आयत का दूसरा हिस्सा जो है वहां लिखा हुआ है कि उसकी शफकत अबदी है। And even in the shepherd's Psalm, Psalm 23, और इतना ही नहीं बल्कि शेफर्ड्स साम करके हम मज़ामिर 23 को जो बोलते हैं, verse 6 says, वहां पे आयत नंबर 6 में लिखा हुआ है, surely goodness and faithfulness shall follow me all the days of my life. यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। When does this
verse be fruitful in our life? ये आयत जो है, ये आयतें कब हमारी जिंदगियों में फलवार होंगी? When the Lord becomes our shepherd. जब खुदा हमारा चौपान होगा तभी। The good shepherd laid down his life for the sheep. हमारा चरवाहा जो है उसने अच्छा चरवाहा वो बना और अपनी जिंदगी हमारी खातिर सलीब पर दी। And secondly, when the Lord is our provision. और दूसरी बात यह है कि जब खुदा हमारे लिए मुहैया करने वाला होता है, He takes us to the green pastures. हमारा खुदा जो है वो हमें हरी हरी चरागाहों में ले जाता है He gives us waters in abundance. और वो हमें कसरत से पानी देता है। And thirdly, when he is our guide. और तीसरी बात, जब वो हमारा रहनुमा जब बनता है। And fourthly, the Lord is besides us. और चौथी बात यह है कि हमारा खुदा हमारे साथ ही रहने वाला है। And fifthly, the Lord is our strength and the Lord is our joy. और पांचवी बात यह है कि हमारा खुदा जो है वो ही हमारी कुव्वत और हमारी खुशी है। Now, what does this Psalm 78 teach us? और यहाँ पे जो Psalm 78 जो है ये हमें क्या बताती है? Faith grows when we remember. जब खुदा को हम याद करने लगते हैं तो हमारा ईमान जो है वो बढ़ने लगेगा। One fact remains. ये एक हकीकत तो दुरुस्त है। We expect God's provision every moment of our life. हमारी जिंदगी के हर पल हर लम्हे में हम खुदा से सब कुछ मांगते रहते हैं, मुंतजिर रहते हैं। But dear friends, there is a problem. लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक तकलीफ है। Even though we trust in God's provisions, हम हमेशा खुदा पर मुबनी हैं, तकिया करते हैं। there is a lot of worry that goes up, that comes up in our mind. लेकिन हमारे जहन में बार बार बहुत सारी बातों को लेकर हम हैरत खाते हैं। What's the cause? What's the reason? वजह क्या है? फिक्रमंद होने की वजह क्या है? Forgetfulness. क्योंकि हम भूल जाते रहते हैं। We forget a lot. हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। So the first thing that we need to know when we have come here to worship, तो पहली बात जो हमें याद रखनी है जब हम यहाँ इबादत के लिए आते हैं वो ये है, remember what God has done for us. हमारे खुदा ने हमारे लिए जो कुछ उसने किया है उसे याद रखेंगे। Memory is the key to our faith. हाँ, याद रखना, याददाश्त जो है वही हमारे ईमान के लिए एक चाबी जैसी बनती है। Memory is the way to worship God in truth. हमारा याददाश्त जो है वही हमारे खुदा को हकीकत में रूह और सच्चाई से इबादत करने का मौका वो बख्शता है। There is a mention of the Red Sea in this psalm. इस मजमूर में हम बहरे कुल्ज़म के बारे में भी पढ़ते हैं। How God divided the Red Sea so that these people can have a safe and smooth passage. और यहाँ ये भी पढ़ते हैं कि खुदा ने किस तरीके से बहरे कुल्ज़म को तकसीम किया ताकि ये लोग खुश्क ज़मीन पर पार करें। How can anyone forget this great miracle? इस अजीम मौजिज़े को किस तरीके से कैसे कोई भी भूल सकते हैं? How can we really erase this out of our memory? हमारे जहन से, हमारे याददाश्त से हम किस तरीके से या कैसे इसे मिटा सकते हैं? But the psalmist says, लेकिन मजमूर नवीस कहता है, yet they forgot. फिर भी वो लोग भूल गए। We are no better than the Israelites, my dear हम friends. अजीजों प्यारों, हम इसराइलियों से बेहतर तो नहीं हैं। One of the key words that occurs time and again in Psalm 106 and Psalm 107 मज़ामीर की किताब 106 और 107 में बार बार एक जुमला आते रहता है और वो ये है, they did not remember, soon forgot. वो लोग याद नहीं रखे बल्कि जल्द भूल गए। They did not remember his abundant kindness, 106 and verse 7. 106 के 7 के मुताबिक हम वहां पढ़ते हैं कि उन लोगों ने उसकी शफकत की कसरत को याद ना किया। And in the same Psalm 106 and verse 13, they forgot his work. और इसी बाब के 13वीं आयत में लिखा हुआ है कि उन्होंने जल्द उसके कामों को भूल गए। What's the climax? इसका अंजाम क्या है? 106 and verse 21, 106 का 21 में they forgot their God, their Savior. उन्होंने अपने मुनज्जी खुदा को भूल गए। What a forgetfulness. क्या ही भूल चुक है। How can they forget the God who redeemed them? उनको जिस खुदा ने छुड़ाया उसको वो लोग कैसे भूल सकते हैं? How can they forget the God who led them through the wilderness? उन्होंने उनके खुदा को जिसने उनको तवील अरसे बियाबान के सफर में जो चलाया चराया उसे किस तरह वो भूल सकते हैं? But praise God, there is one verse, 45, 106:45. लेकिन खुदा का शुक्र है ये एक आयत है 106:45। It says, वहां पे लिखा हुआ है, when he remembered his covenant for the sake and relented according to his greatness of his loving kindness.
और उसने उनके हक में अपने अहद को याद किया और अपनी शफकत की कसरत के मुताबिक तरस खाया। We keep on forgetting, but God remembers His covenant. हम तो भूल ही जाते रहते हैं, लेकिन खुदा याद करते रहता है। In 2 Timothy chapter 3 and verse 2, दूसरा तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 2 में there are characteristics of people in the last days. वहां पे आखिरी दिनों में लोग किस तरह बन जाते हैं, वो बातें वहां लिखी And गई हैं। one of the characteristic is being ungrateful. और वहां एक कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, और वो है वो लोग खुदा का शुक्र अदा नहीं करते हैं और वो लोग नाशुक्र बन जाते हैं। So as we have come here to worship, और जैसे ही हम यहाँ आए हैं खुदा की इबादत करने के लिए, remember God. Let God be your focus. हम खुदा को याद करेंगे और खुदा पर ही हम नजर डालेंगे। And remember His great works towards us. और खुदा के बड़े अजीबो गरीब काम जो हमारे वास्ते खुदा ने किए हैं, उनको याद फरमाएंगे। And the second R in this passage, और इस मजमूर में और एक बात हम देखते we हैं, remembered, then we should repent हमें उसे याद करना है और पछताना भी है। of what you have forgotten, from what ways we have strayed. जिसे तूने भूल गया और जिन राहों से तू बिछड़ गया, निकल चुका है, उनको याद फरमाना है। Worship, we presume, is a simple act of going to the church, sing some songs, and utter a few words. इबादत को लेकर हम समझते हैं कि इबादत इतनी ही है कि हम चर्च को जाएंगे और गाने गाएंगे, कुछ बातें बोलेंगे, खत्म। That's why the scripture says, लेकिन खुदा का कलाम बताता है, guard your steps even as you go to the house of God. जब तू खुदा के हैकल में दाखिल होगा तो अपने पाँवों को तू संभाल के जाना। Don't be foolish to offer the sacrifices of fools. अहमक के ज़बी है तू चढ़ाना नहीं। We approach worship with a sense of casualness. हम बहुत सारी बार इस तरह करते हैं कि इबादत को लेकर बहुत सादा दिल, मतलब बहुत कैजुअल बन जाते हैं। Before we come to the worship, there is a lot of groundwork that has to be done. इबादत के लिए आने से पहले, उससे पहले ही कुछ काम करने पड़ते हैं। Make a record of all the things that you have done during the past 6 days. पिछले 6 दिनों में जो कुछ तूने किया है, उन सभी बातों को याद करना। Yes, our feet must have been dirtied as we are walking in a dirty world. हाँ, हकीकी बात यह है कि हम इस गंदी दुनिया में जा रहे हैं तो हमारे पैर जो हैं शायद गंदे हो चुके हैं। One question that you should put your heart. तो आपके दिल में एक सवाल खड़े करना है, Did I use the word of God to cleanse myself and be blameless and a man of integrity? और वो सवाल ये है कि क्या मैंने खुदा के कलाम को लेकर मेरी जिंदगी को साफ करने के लिए और मेरी जिंदगी में हकीकत और वफादारी दिखाने के लिए खुदा के कलाम को मुस्तमिल रखा है कि नहीं? My worship should not be mindless. हमारी इबादत जो है वो माइंडलेस, मतलब बेसमझ इबादत नहीं रहनी चाहिए। It should not be just an outward expression. बाहर जुहूर में सिर्फ दिखावे के लिए कुछ मत करना। That's what the Lord says. इसीलिए खुदा फरमाते हैं, The sacrifice of the wicked is an abomination. खुदावंद कहते हैं कि शरीरों के ज़बीहे जो होते हैं वो खुदा के लिए, खुदा के सामने हकीर हैं। We all one aim in life is we all should be very good on the outward. हम सबों का जिंदगी में एक आरजू ये रहना चाहिए कि हमारी जिंदगी में बाहर सब कुछ अच्छा तो रहना है। But God remembers all. He looks at the intent of our heart within. हमारा आरजू ऐसा रहता है, लेकिन खुदा तो हमारे दिल के अंदर झांक कर देखते रहता है। That's why he says the intent of the heart is evil in the days of Noah. इसीलिए उसने कहा कलाम में कि नोआह के अय्याम में इंसानों के दिलों की हालत बहुत खराब थी। And that's why he had to wipe out the mankind, save 8 souls. इसीलिए खुदा ने तमाम रुए जमीन पर से इंसानों को उसने नेस्तो नाबूद किया, सिर्फ 8 जानों को उसने बचाई। So when we worship, first one is remember. तो जब हम इबादत करने के लिए आते हैं तो पहली बात जो हमें याद रखना है वो है Remember God and His works. खुदा को याद करना और उसके कामों को याद करना। And secondly, और दूसरी बात, repent of what you have forgotten
and from where you have strayed. जिसे तूने भूल गया और जिस राह से तू बिछड़ गया, उन बातों को याद करके पछताना। And thirdly, और तीसरी बात, respond to his faithfulness. जो खुदा तुझे बुला रहा है उसके रद्दे अमल में रिस्पॉन्ड करना। Respond with praise and thankfulness. शुक्रिया अदा करते हुए अपनी इबादत बजा लाना। Do you know, in this world, याद फरमाएं, इस दुनिया में the greatest insult we can hurl at anyone is to be irresponsive. अगर किसी की तौहीन अगर करना चाहते हैं, तोहमत लगाना चाहते हैं, तो उन पर उनकी तरफ उनके निस्बत इर्रेस्पॉन्सिबल अगर रहेंगे तो वो बड़ी तोहमत लगानी जैसी होती है। The greatest insult we can hurl at anyone is to remain silent. ये मतलब है कि अगर हम किसी की बातों को लेकर खामोश रहते हैं, नजरअंदाज करते हैं, गफलत शायरी करते हैं, तो ये बहुत बड़ी तोहमत होती है उन पर। And the second insult that we can hurl at anyone is to be ungrateful. और दूसरी तोहमत जो दूसरों पर हम लगा सकते हैं, वो ये है कि नाशुक्र रहना। After experiencing God's goodness, खुदा की इतनी अच्छी खूबियां पाने के बाद, and to be irresponsive is insulting God. अब हम गफल शायरी से या इर्रेस्पॉन्सिबल अगर रहेंगे तो खुदा की बेइज्जती करेंगे। So worship is an instant response to the recognition of God's goodness. इसलिए खुदा की खूबी को याद करते हुए यकायक जो दिल से खुशी और इबादत आती है, उसे उसके सामने पेश करना। That's why the psalmist says, "Come, let us sing for joy." इसीलिए मज़ामी नवीस कहता है कि चलें, हम आप सब आएं, हम खुशी के नारे लगाएंगे। Let us shout to the rock of our salvation. हमारे नजात के चट्टान को लेकर हम खुशियां मनाएंगे। Enter into his presence with thanksgiving. उसकी हुजूरी में हम खुशी से आगे बढ़ेंगे। Make a joyful song. और उसके सामने जाकर हम ललकार कर गाएंगे। So what do we do in worship? तो इबादत में हम क्या करते हैं? Acknowledging God's goodness and acknowledging God's greatness. खुदा की भलाई और खुदा की अजमत को याद करते हैं। That's why we have this verse in New Testament. इसीलिए नए अहदनामा में हम ये पढ़ते हैं, Hebrews 12 and 28. इब्रानियों की किताब बाब नंबर 12 और आयत नंबर 28 में, It encourages believers to be thankful and show worship God acceptably with reverence and awe. वहां पे लिखा हुआ है कि हर एक यीशुई मोमिन को खुदा के सामने जबान से नहीं बल्कि दिल से इबादत करने के लिए वो कहता है। So worship is a fitting response to God's goodness and we recognize God as the ultimate one in our life. तो खुदा की इबादत जो है, खुदा के लिए जो इबादत हम लाते हैं, वो इस रेस्पॉन्स में रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करके हम लाते हैं। And the other response to God's goodness is making a commitment to obey Him and to exercise holiness. और एक रेस्पॉन्स जो खुदा के लिए हम दिखाते हैं वो ये है कि हम खुदा के सामने आकर फरमान बरदारी दिखाते हैं। One of the verses I love in the Bible, बाइबल में मुझे बहुत पसंद एक आयत है, 1 John chapter 3 verses 2 and 3. 1 John chapter 3 verses 2 और 3। Beloved, now we are the children, but we do not know what we shall be, but when He comes, we shall be like Him, for we shall see Him. And everyone who has this motivation shall be holy, even as He is holy. अजीजो, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। You memorize these two verses. और इन दोनों आयतों को आप हिफ्ज करें। It is a great cause of joy for us. क्योंकि इन दोनों आयतों में हमारे लिए बड़ी खुशी की बातें लिखी गई हैं। It raises our hopes to a new height. हमारी उम्मीद जो है मुस्तकबिल में, वो उस उम्मीद को ये आयतें बड़ी ऊंचाई तक ले जाती हैं। When we have this hope, every difficulty, every storm is stilled in this world for us. जब हमारे सामने ये उम्मीद है तो इस जिंदगी का हर तूफान जो है, मुश्किलात जो हैं, सब थमा दिए जाएंगे। And the third response to God's goodness is engaging ourselves in good works. और खुदा की भलाई के इवज़ हमारा रद्दो अमल
तीसरी तरीके से किस तरह रहता है? by engaging ourselves in good works. हमें अच्छे कामों में अपने आप को लगाने से हम इस तरह का रद्द अमल दिखा सकते हैं। That's why we have this verse in Matthew 5:14. इसीलिए मत्ती की खुशखबरी 5:14 में ऐसा लिखा हुआ It है, says, when people see your good works accompanied by a good behavior, they respond by giving glory to God. यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम नेकोकारी करेंगे तो दुनिया क्या करेगी? दुनिया हमारे आसमानी बाप को हमारे कामों को देख के बाप की तमजीद करेगी। And even King Nebuchadnezzar in Daniel, और दानियल की किताब में नबूकदनेस्सर बादशाह ने क्या किया था? he says about these three young people, इन 3 नौजवानों के बारे में वो ऐसा कहता है, they surrendered their bodies. क्या हुआ था वहां पे? उन तीनों ने अपने जिस्मों को उसके हवाले कर दिए। Rather than serve or worship any idol except their own God. उन्होंने ऐसा फैसला किया कि हम किसी भी बुत की परस्तिश नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा की परस्तिश करेंगे। So they did not wish to serve or worship any other God except God Jehovah. इस तरीके से यहोवा खुदा को छोड़कर किसी दूसरे माबूदों या बुतों की परस्तिश करने से वो लोग इनकार कर दिए। So this is the basis for our worship. तो ये है हमारी इबादत की बुनियाद। Remember God's goodness. खुदा की भलाई को याद करना। Remember God's great works on your behalf. हमारे लिए हमारी जिंदगियों में खुदा के जो बड़े काम हैं उनको याद करना। And in worship, we repent of all the forgotten things from and the ways we have strayed away from Him. और इबादत में हम उन सारी चीजों को, बातों को याद करते, मतलब जहां से हम खुदा से दूर हो चुके हैं, जहां से हम गिर चुके हैं, उन बातों को याद करके हम पछतावे से खुदा के पास आएंगे। And worship is the natural response to God's faithfulness. और खुदा की इस बड़ी वफादारी के सामने ये हमारी इबादत जो है वो एक रद्द अमल के तरीके से आगे आती है। And even in the worship, we make a commitment for obedience and submission. और इबादत में हम क्या करते हैं? खुदा से कहते हैं कि ऐ खुदा, हम फरमान बरदार बनते हैं और आपके सामने हम झुकते हैं। So let's introspect our life. तो अब हम हमारी जिंदगियों को जांचेंगे, परखेंगे। Is it a vain worship by offering worship from our lips? क्या हम खुदा के सामने आज सिर्फ एक बेकार इबादत, मतलब सिर्फ होंठों से करने वाली होने वाली इबादत ला रहे हैं क्या? Or is it a worship in spirit and in truth? या हमारे जहन से, सच्चाई से, रूह से उभर कर आने वाली इबादत पेश करने वाले हैं क्या? There is a vain worship, there is a false worship, there is a worship in spirit and in truth. खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि बेफायदा की इबादत या झूठी इबादत और हकीकी इबादत, रूह में करने वाली सच्चाई की इबादत भी होती हैं। As God has spoken to us, खुदा ने हमसे आज शाम को बात की है। let's bring out a worship and worship Him in spirit and in truth. तो हम क्या करेंगे? रूह और सच्चाई से सच्ची इबादत खुदा के सामने पेश करेंगे। A worship that is backed by a good behavior, good conduct. हमारी इबादत के पीछे हमारा अच्छा रवैया रहना जरूरी है। The few words that we say has to be backed up by a 6 days a good conduct and good experience. चंद अल्फाज जो यहाँ इबादत के तौर पर हम पेश करने वाले हैं उनके पीछे क्या रहना चाहिए? गुजरे हुए 6 दिनों में जो हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी की नेकी जो है, वो सब हमारी इबादत के पीछे जरूर रहनी है। May God accept our worship and be exalted over our praises. आज शाम को हमारी इबादत खुदा मकबूल ठहराए और हमारी इबादत पर वो तख्त नशीन हो।